Good morning, student. I hope you will fit and fine at your home. And today we are starting a new chapter for UT third. That is very important for your exam. Class discussion, recite and discussion. I have already elaborate this chapter in the class. So as a revision work, I will do this chapter again. Okay. So let's start. Class discussion summary. At first, I explain the summary of this chapter in English. Okay, are you ready? Start. Class discussion summary will help in getting to know the gist of the poem. It is a poem written by Gervase Finn, is a poet, famous poet. The poem is about a little girl who doesn't speak much. It is set in the class discussion that is happening with the teacher. During the discussion, the student and teacher all engaging in conversation. All of them are busy with discussing the topic. However, there is girl Jen who is seen not participating the conversation. She doesn't discuss anything and sit in silence and stare at everyone. On seeing her this silent, the teacher asks her if she has any problem to this. Jen then gave a very wifting reply. She says that the world is full of all type of people. Similarly, it has some people who don't prefer talking that much as being quiet in their nature. The poem is about a class that is having a discussion with their teacher. Garvaswin is the poet of this poem. Is the poet of this poem. It teaches a great lesson to all. Everyone is busy discussing something or the other in the class. Now the teacher's attention goes towards Jenny. She is a girl who is very quiet during the discussion. The teacher tells her that while everyone was discussing and saying something of the other, Jenny was absurdly quiet throughoutly. Then the teacher asked her the reason for her quietness. She asked her because amongst all the chatter, Jenny did not say anything and was just staring at everyone in silence. The teacher asked Jenny to give a plain answer and very clear. The teacher wanted to know what is the matter with Jenny. After that, Jenny decided to answer her teacher. She looked up at the teacher and then speak in a very clear and low voice. She tells her that the world is full of different type of people. There are some people who prefer to stay quiet. She hints this towards her nature. Moreover, she gives a befitting reply to all. This was a prove her point and also speak on behalf of all people. Thus, this poem tells you about the different natures of children in subtle nature. It is a nice way of telling that everyone is different in their own way. The poem tells us that we should not judge everyone on the same parameter. We must allow everyone to be in their own way. Jenny raised a voice for people that don't really like to talk all the time. That don't really like to talk on the time same. We must not expect everyone to be the same as all. Some can be quiet and some can be chatterboxes. There is not any compulsion, so we must be more accepting of everyone and treat everyone in a good manner. And the finally, the conclusion of the poem class discussion is the poem is a great way of making people understand that there are different kinds of people and not everyone alike. It throws light on the quiet
people who don't prefer talking that much. Okay, the summary of the chapter has been finished now, my dear student, and now we explain line by line. Okay, on the display you are looking the of this poem. In the class discussion, Jenny, you hardly said a word. क्लास डिस्कशन हो रहा है, चारों तरफ बच्चे बैठे हुए हैं. फिर टीचर पुट द क्वेश्चन ऑफ जैने कि क्लास डिस्कशन में जैने यू हार्डली सैड अवर्ड, तुमने एक शब्द भी मुश्किल से कहा, एक शब्द भी नहीं बोल रही हो. वी ऑल आर एड आवर ओपिनियन, हम सब आपका ओपिनियन चाहते हैं, विचार चाहते हैं, आप भी कुछ बोलें. वट फ्रॉम यू वर वेयरली हेड, लेकिन आपकी तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. देयर इज नो रिस्पॉन्स बियॉन्ड योर साइड, हर साइड. यू सेट एंड स्टेयर इन द साइलेंस सराउंडिंग बाई द चैटर, आप बैठी हैं और स्टेयर घूर रही हैं, साइलेंस चुपचाप, सब लोग जो बोल रहे हैं उनको आप देख रही हैं, घूर रही हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. नाउ टेल मी जेनी, अब मुझे बताओ जेनी, एंड प्लीज बी प्लेन, और ये भी क्लियर करो, इज देयर एनीथिंग दिस मैटर, क्या कोई इस मामले में कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है आपको, एनीथिंग दिस मैटर. जेनी लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, जेनी देखती है, उनकी तरफ खड़े हो जाती है, कैसी बोलती है. हर वॉइस वॉइस क्लियर एंड लो, जो बोलती है तो उसकी आवाज़ बहुत ही साफ और लो होती है. देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो. मैम, आप जानती हैं कि संसार में कई लोग ऐसे हैं जो स्वभाव से सी वाज क्वाइट बाई नेचर स्वभाव से होते हैं. तो डोंट जज अ बुक ऑन द कवर, किसी भी को आदमी को किसी भी पहचान अनुमान लगाने से पहले उस आदमी को डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उसे जज कर लेना चाहिए. कि कोई भी व्यक्ति बाई नेचर जैसे कोई शांत है, क्वाइट रहता है, तो ये नहीं वो मतलब उसे मतलब दैट पर्सन डजंट हैव एनफ नॉलेज फॉर द सब्जेक्ट, इस तरीके से. एंड इन दिस वर्ल्ड डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट पैरामीटर. Anyone is talkative, anyone is deep, dumb, quiet by nature, so Jenny is same. Okay, I think all the students will understand this poem. And now let's go the written work of this poem. At first we were talking about the word meaning of this chapter. So the word meaning, the first is discussion. What is discussion? Talking together in a group on a single topic. Okay. Next is aired, make public, barely, only, just. Aired, make public, barely, only, just. Stare, घूरना, look fixedly with eyes wide open, बड़ी आँख करके एक तरीके से टकटकी लगा के देखना. एंड प्लेन मीन्स क्लियर, साफ तौर पे यहाँ पे मीन्स है क्लियर. नाउ द क्वेश्चन आंसर, you will write only question answer on your notebook. Okay, and the rest of the material you will understand orally. The first question is, what activity was going on in the class, कि क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही है. तो यू नो वेरी वेल दैट क्लास डिस्कशन इज वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, डिस्कशन चल रहा है क्लास में, क्लास डिस्कशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास में कौन चुपचाप बैठा हुआ था. तो यू नो वेरी वेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जेनी इज अ गर्ल हु वाज क्वाइट इन द क्लास. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वाज शी क्वाइट, वह शांत क्यों थी, वह शांत क्यों थी. ऑप्शन इज फर्स्ट, शी वाज एफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन, वो डरती थी अपना विचार देने से. सेकंड, शी हेटेड द नॉइज, वो उसे शोर से घृणा थी. शी डिडंट लाइक दिस एक्टिविटी, वो इस एक्टिविटी को पसंद नहीं कर रही थी. या शी वाज क्वाइट बाई नेचर, वो अपनी प्रकृति से स्वभाव से शांत थी. तो द आंसर इज शी वाज क्वाइट बाई नेचर. ओके, नाउ next question is, how do you interact in class discussion? During discussion, do you participate or remain quiet? My dear student, this is a पर्सनल, मतलब पर्सनली आप आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का.
ये कोई डिफरेंट पर्सन हैव अ डिफरेंट व्यू इस क्वेश्चन के लिए। तो मीन्स है हाउ डू यू इंटरेक्ट इन द क्लास डिस्कशन ड्यूरिंग डिस्कशन। क्या आपने भी कभी इंटरेक्ट करा है जब आपकी क्लास में डिस्कशन होती है के दौरान आप भी पार्टिसिपेट करा है। डू यू पार्टिसिपेट इन रिमेन क्वाइट, क्या आप भाग लेते हैं या शांत रहते हैं। आप भी क्या भाग लेते हैं, शांत रहते हैं हमेशा। तो इस बारे में आपको अपनी गिव योर ओपिनियन, आपको अपनी राय देना है कि क्या आपकी मतलब नेचर होता है इसमें। सो only this question will note down on your notebook and as a revision work. Okay, let's go to the next question. Think and write, सोचें और लिखें। चूज टू फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपने दो दोस्तों को चुनना है इन योर क्लास, अपनी क्लास के, हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो कि एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। एंड यूज द क्लू ऑन द बॉक्स, और आपके नीचे जो बॉक्स दिया है इसमें कुछ क्लू दिए हैं। डिस्क्राइब देयर नेचर, आपको उनके नेचरों के बारे में बताना कि कौन सा दोस्त आपका कौन सा मतलब इसमें वर्ड फिट हो रहा है उस पर। यू मे आल्सो ऐड योर ओन वर्ड टू डिस्क्राइब देम, आप अपनी तरफ से भी कुछ वर्ड को ऐड कर सकते हैं उनके बारे में बताने के लिए। ओके, सो the word is, first is naughty, living, sharp, sharing, careless, studious, quiet, friendly, helpful, regular, cheerful. There are the following word and you will choose one of the friend, मतलब आपको you have to select, you selected at first two friend A and B. Now you fit the word, some word for A, friend A, and some of the friend B, and you make a extra word, you add extra word to describe their quality, merit and demerit. Okay, सपोज दैट नोटी है, शायद शरारती है कोई, लिवली है, शेयरिंग है, केयरलेस है, स्टूडियस है, क्वाइट है, यू नो वेरी वेल। ओके, तो यू विल राइट ओनली दिस क्वेश्चन ऑन योर रफ कॉपी। ओके, लेट्स टॉक, ये सिर्फ बातों के लिए आओ बातें करें। ये क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज अ डिस्कशन, डिस्कशन क्या है। टू डिस्कशन मीन्स टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग, व्हेन यू डू दिस यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन। टू डिस्कस मीन्स बातें करना, टॉक टुगेदर बातें करना साथ साथ, डिसाइड करना किसी चीज़ को, व्हेन डू दिस जब आप ये करते हैं, यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन, तो आप समझ लो उस डिस्कशन में पार्ट आपका मतलब लेते हैं। जैसे सपोज दैट हम डिस्कशन कर रहे हैं इस समय मतलब कि सपोज दैट आई गेव द टॉपिक इन द क्लास कि रूरल एरिया बनाम अर्बन एरिया, मतलब शहर की ज़िंदगी, लाइफ, विलेज लाइफ स्टाइल, सिटी लाइफ स्टाइल, व्हाट इज द डिफरेंट in a city lifestyle and village lifestyle. So many students will participate in it, that in a village life there are fresh air, be purity is main parameter of this village life, हर चीज़ प्योर मिलती है गांव की ज़िंदगी में। द एयर इज क्लीन, हरियाली होती है, ग्रीनरी होती है। बट इन सिटी लाइफ में तो इस तरीके से आप डिस्कशन, इसी को हम डिस्कशन कहते हैं। नाउ इन कुछ पैरामीटर्स होते हैं, सम ऑफ द पैरामीटर फॉर डिस्कशन। द फर्स्ट पैरामीटर इज इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव हिज आइडिया वन बाई वन, में मतलब हर व्यक्ति अपना अपना आइडिया देता है, सुझाव देता है एक एक करके, ये नहीं सब एक संग बोलने लगे। वन बाई वन जब उसका मीट आता है टाइम, तब वो भी मतलब अपनी सजेशन देता है, एडवाइस देता है, अपने मतलब जो भी प्रपोजल रखता है वो वन बाई वन। सेकेंड, सम टेल वाई समथिंग शुड बी डन, अदर में टेल हाउ। सम टेल वाई समथिंग शुड बी डन, कुछ लोग कहते हैं ऐसा क्यों हुआ। अदर में टेल हाउ, और कुछ कहते हैं कैसे, हाउ। अगर आप कह रहे हैं कि द मतलब कि द विलेज लाइफ इज़ वेरी वंडरफुल, वेरी फैंटेस्टिक होती है गांव की ज़िंदगी, तो सेकंड आदमी जो होता है डिस्कशन में वो आपको ये आंसर पुटअप कर सकता है, हाउ, कैसे। प्लीज़ इलेबोरेटेड, कृपया इसे बताएं कि कैसे ये है। ओके, इस तरीके से डिस्कशन को हम गोइंग अप करते हैं स्टेप बाय स्टेप। थर्ड इज पार्टिसिपेंट आस्क क्वेश्चन एंड आंसर देम। अब स्टूडेंट पार्टिसिपेट होते हैं, वो एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते हैं, किसी ने किसी से क्वेश्चन करा, फिर किसी ने किसी को आंसर, इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग।
नेक्स्ट, मैनी आइडियाज आर गिवन, कई आइडियाज भाई उससे आइडियाज दिए जाते हैं। एवरीवन हेल्प टू डिसाइड विच आइडिया आर द बेस्ट, और हर व्यक्ति मदद करता है डिसाइड करने में कि किसका आइडिया द बेस्ट आइडिया, कि सबसे अच्छा आइडिया है। एंड नोट द पॉइंट यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू द पार्क। नोट द पॉइंट, समझ लो आप पार्क में जा रहे हैं डिस्कशन करने के लिए, घूमने के लिए, विजिट करने के लिए। नोट द पॉइंट यू माइट डिस्कस, आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं इन पॉइंटों को बिफोर प्लानिंग टू विजिट अ पार्क में। फर्स्ट कौन कौन से पॉइंट है? फर्स्ट इज चूज अ डे एंड टाइम। सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे कि भाई दिन कौन सा चुना जाए और टाइम कौन सा चुना जाए। फिर आप अपना बताएंगे कि ये दिन ये टाइम सही है। दूसरा कहेगा हाउ, क्यों, क्या खासियत है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर इन दिस डे एंड टाइम में, क्या इंपॉर्टेंट है जो आपने ये सिलेक्ट करा। सेकंड, व्हाट थिंग टू ब्रिंग टू प्ले, कौन कौन सी चीज़ें हमें खेलने के लिए ले जानी है, कि क्या खेलना है वहाँ पे, क्रिकेट खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, चेस खेलना है और टेनिस खेलना है, लाइक दिस है। तो ये आप बात कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज असाइन ड्यूटी, किस किस को क्या क्या ड्यूटी दी जाएगी वो देखना है कि भाई आपको यू डिसिप्लिन, यू कंट्रोल द डिसिप्लिन ऑफ द स्टूडेंट, यू कंट्रोल द मतलब लंच प्रिपरेशन, यू हैव प्रिपेयर्ड ऑल द लंच प्रिपरेशन, तो आपको लंच की तैयारी करनी है। एंड फोर्थ इज थिंक टू इट, हमें क्या क्या चीज़ खानी है, ये बात कर सकते हैं कि जंक फूड इज नॉट अलाउड, इस तरीके से, मतलब पिकनिक में जा रहे हैं तो जंक फूड थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन इस पे आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या आपको थिंक टू ईट क्या क्या खानी है। ओके, तो ये सिर्फ आपके लिए ओरली था, समझने के लिए कि डिस्कशन एक्चुअल में व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिस्कशन, किस तरीके से हम डिस्कशन को एलैबोरेट कर सकते हैं, डिस्कशन क्या होता है। नेक्स्ट इज fill in the blank grade giving below by assigning qualities to each person, some clue are given to help for you। फिल इन द ग्रेड, ये नीचे ग्रेड है, इसे फिल करना है आपको। गिवन, ये बुक पे यू विल डू ऑन योर बुक, ओके, ये बुक पे ही करेंगे आप। एंड फिल इन द ग्रेड गिवन बिलो असाइन क्वालिटी, इसमें क्वालिटी दी है, ये आपके ऊपर क्लू दिया है। इसमें हर डिफरेंट पर्सन हैव अ डिफरेंट क्वालिटी, सो यू फिल बिफोर दैट पर्सन, ओके, वही क्वालिटी आपको भरनी है उसके सामने। सो सम क्लू आर गिवन हेल्प टू हेल्प यू शेयर, कुछ क्लू है यहाँ पे जो कि आपकी मदद करेंगे। सो क्लू आर संगीता lends her pencil to her partner, संगीता lends her pencil to her partner। Next, Neerav is also called a chatterbox। Next, Pranav recently saved a cat from the drowning in the lake। Next, Megha is just the opposite of Neerav। And Mithali always tease everyone। Ritu is always seen with the book in hand। ओके, सो यहाँ पे आपकी जैसे संगीता लैंड हर पेंसिल टू हर पार्टनर, संगीता हमेशा अपने पार्टनर से पेंसिल उधार लेती हैं। नीरव आल्सो कॉल्ड ए चैटर बॉक्स, नीरव को चैटर बॉक्स बुलाया जाता है, बहुत बातूनी है, टॉकेटिव है। प्रणब रिसेंटली सेव अ कैट, प्रणब ने एक बिल्ली को बचाया था डूबने से, लैक माने झील में। यू आर लुकिंग इन द पिक्चर। मेघा एक अपोजिट ऑफ नीरव, और नीरव के हमेशा अपोजिट रहती है। मिताली आलवे टीस एवरी, मिताली हमेशा दूसरों को परेशान करती है। ऋतु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हैंड, ऋतु ऑलवेज सीन द बुक इन हैंड, ऋतु हमेशा दिखती है एक हाथ में बुक लिए हुए, हमेशा उसे देखा जा सकता है ऋतु को। सो हेयर, मतलब यहाँ पे नेम दिए हैं कि जो ब्रेव है उस पर टिक लगाना है, जो नोटी है उस पर टिक लगाना है, क्वाइट शांत रहता है उस पर लगाना है, टॉकेटिव कौन है, जनरस कौन है, स्टूडियस मेहनती कौन है, पढ़ाइए। एंड हेयर नीरव, प्रणव, मेघना, मिताली, ऋतु, संगीता। यहाँ आप नीरव को एट फर्स्ट पॉइंट आउट करते हैं, नीरव की कौन सी क्वालिटी है। अब नीरव क्या है, नीरव के ऊपर आया, नीरव आल्सो कॉल्ड चैटर बॉक्स, नीरव चैटर बॉक्स है, तो इसमें कौन सी फिट होगा, लास्ट वाल, नहीं लास्ट में नहीं, टॉकेटिव में है, टॉकेटिव के सामने आप मार्क लगा दें राइट का, इससे आपको पता लगेगा नीरव टॉकेटिव है। नेक्स्ट इज प्रणव, व्हाट क्वालिटी यू विल फाइंड इन प्रणव। प्रणव क्या है, प्रणव के, प्रणव रिसेंटली सेव अ कैट, प्रणव ने एक डूबती हुई बिल्ली को बचाया, तो प्रणव क्या होगा, नोटी नहीं है, क्वाइट नहीं होगा, टॉकेटिव, जनरस होगा, एंड ब्रेव, जनरस ब्रेव दोनों हो जाएंगे प्रणव।
थर्ड प्रणव रिसेंटली हो गया। फिर है मेघा, मेघा की क्या है, मेघा इज अपोजिट ऑफ नीरव, की हमेशा अपोजिट रहती है। तो आपको बताना है कि कैस क्या है, कौन सी क्वालिटी। तो आपको ये एक्टिविटी है, यू विल डू एट योर होम एंड सेंड मी द पिक ऑन माई नंबर। ओके, आपको ये एक भरनी है एक्टिविटी और आपको मेरे नंबर पर सेंड करना है। एंड आई आल्सो गिव यू सम होम असाइनमेंट एंड दैट असाइनमेंट एट फर्स्ट एट द टॉप ऑफ योर पेपर मतलब कॉपी notebook you write revision work. After that I gave the 4 question you will do and send to in the my WhatsApp number. Okay, have a nice day dear student.